Welcome to my Edu Dreams. Dear friends, I hope you are fine and doing well. Today in this topic we are discussing about peace education, शांति की शिक्षा, अमन की तालीम. This video is exclusively for B.Ed students and also useful for teacher educators, M.Ed students, UGC NET aspirants, and also useful for the competitors of CTET, KTET, UPTET, APTET, UPSC, PSCs, etc. Before discussing a important topic, peace education, we will have a quick discussion and quick understanding about important quotes of great personalities. The first quote is, "Love is like war, easy to begin but very hard to stop." This is said by H.L. Mencken. Where there is a love, there is a life. The second quote given by Mahatma Gandhi. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. This is said by Mother Teresa. All is fair in love and war. This is the proverb attributed to John Lilly's Euphrates. So, friends, these are the quotes which are giving a lesson of love. Love is a symbol of peace, and peace is required in this era. In these days, peace is required. So, one thing is very common in this, the love. Love means we have to love with the nation. Love is a symbol of peace. According to Mahatma Gandhi, he said, where there is a love, there is a life. Life will be happy if there is a love. Otherwise, life is waste without love. Love is like war, easy to begin but very hard to stop. This is said by H.L. Mencken. Let us always meet each other with smile. Whenever we have to meet the people, we have to meet with a smile, and smile is the beginning of love, said by Mother Teresa. All is fair in love and war, a proverb attributed to John Lilly's Euphrates. So, I hope you understand what we are going to discuss in this lesson. प्रिय मित्रों, आज हम शांति की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इम्पॉर्टेंट कोट्स जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ने दी है उसके बारे में एक चर्चा करेंगे. लव इज़ लाइक वार, यानी प्यार जंग की तरह है. ईज़ी टू बिगिन, ये बहुत आसानी के साथ शुरू होता है. बट वेरी हार्ड टू स्टॉप, लेकिन जब ये शुरू होता है तो इसको कंट्रोल करना, इसको स्टॉप करना, इसको ख़त्म करना, ये बहुत मुश्किल होता है. इस तरह से कहा है H.L. मेनकेन ने. दूसरा इम्पॉर्टेंट कोट है, वेयर देर इज़ ए लव देर इज़ ए लाइफ. इस तरह से महात्मा गांधी ने कहा है कि जहाँ पर प्रेम होगा, जहाँ पर प्यार होगा, वहाँ पर ज़िंदगी होगी, जीवन होगा. यानी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी वहीं पर रहेगी जहाँ पर प्यार मोहब्बत रहेगा. इस तरह से महात्मा गांधी का कहना है. लेट अस ऑलवेज मीट ईच अदर विथ स्माइल, फॉर द स्माइल इज़ द बिगिनिंग ऑफ लव. मदर टेरेसा का कहना है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए मुलाकात करें, और मुस्कुराहट ही मोहब्बत की एक शुरुआत होती है. इस तरह से मदर टेरेसा ने कहा है. ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार, ये एक प्रॉवर्ब है, कहावत है अंग्रेज़ी में. तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ प्यार में और जंग में चलता है, यानी जायज़ है, फेयर है. तो इस तरह से ये एक प्रॉवर्ब है. तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर एक वर्ड कॉमन है, वो है लव, यानी प्यार, प्यार मोहब्बत. जहाँ पर प्यार और मोहब्बत होगी वहाँ पर डेफिनेटली अमन और सलामती होगी,
शांति होगी। शांति लाने के लिए हम किस तरह से शांति लाना है उसको शिक्षा यानी शिक्षा एजुकेशन प्राप्त करना ज़रूरी है। चलिए अब हम पीस एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। डियर फ्रेंड्स, outline of today's presentation. This is the presentation, today's outline of presentation. Meaning and definitions of peace education. First we will discuss about meaning and definitions of peace education, and then we will discuss about objectives of peace education, need of peace education, types of peace education, quality of peace education, and what are the ways of conflict, and what are the conflicts at national and international levels, sources of peace education, pedagogy of peace education, and how to resolve conflicts at national and international levels, and sample questions for term and examinations, and then summary. So this is the outline of today's presentation. Now let us start one by one. What is meaning of peace? It is absence of violent conflict of all kinds, including war, riot, massacre, assassination, or simply physical attack, and elimination of all forms of structural violence. This is the meaning of peace. Peace means there should not be physical attack, and there should not be any kind of war, and there should not be any kind of riot, and there should not be any kind of massacre, and no assassination, and no structural violence. All these things are, if all these things are not taking place, that is considered as peace. These things should be absent, then only it is called as peace. पीस का अर्थ ये है कि किसी तरह का जंग ना हो, किसी तरह की जंग ना हो, झगड़े ना हो, फसाद ना हो, एक दूसरे पर हमला ना हो, अत्याचार ना हो, और किसी भी बड़ी पर्सनालिटी का मतलब असैसिनेशन ना हो। यानी जब जैसी कोई भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर या कि कोई ग्रेट पर्सनालिटी अगर की डेथ हो जाती है तो लोग उसके भी इसमें भी जमा हो जाते हैं सब लोग, और फिर मतलब डिस्टर्बेंस शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, फिज़िकल अटैक भी ना हो, शारीरिक हमले भी ना हो, और इन सब को स्ट्रक्चरल वायलेंस यानी किसी तरह का भेदभाव ना हो। समाज में, हमारे समाज में कई तरह के लोग होते हैं, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तरह तरह से मतलब कलर को भी लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वाइफ एंड हस्बैंड में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ख़ास तौर पर हस्बैंड का डोमिनेशन वाइफ पर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को का एब्सेंट होना यानी ये सारी चीज़ें ना हो तो कहा जाएगा कि देयर इज़ ए पीस। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पीस। व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ पीस, यानी डेफिनेशन की परिभाषा क्या है वो हम समझेंगे। पीस कैनॉट बी केप्ट बाय फोर्स, यानी पीस हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, यानी अमन लाने के लिए हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इट कैन बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग, ये समझ के ज़रिए हासिल होता है, यानी समझते हुए पीस हम ला सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर किसी के दरमियान हो जाती है तो फिर वो पीस खो देता है, यानी अमन व सलामती नहीं होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ पर होती है वहाँ पीस नहीं मिलती है, यानी शांति नहीं मिलती है। इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, दिस इज़ व्हाट सेड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, पीस वी कैनॉट गेट बाय फोर्स बट पीस कैन बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। If there is misunderstanding, then that means there is no peace. So peace, in order to get peace, we need peaceful environment and we need proper understanding. The another definition given by Johann Vincent Galtung, peace is not only the absence of all violence,
but also the presence of justice and human security in all their forms. That means peace is not only the absence of all violence. If there is no violence, means there is no peace, but also the presence of justice and human security in all their forms. It's not only about violence, but also the presence of justice. If there is a justice, there is a human security in all forms. That means there is a peace. This is what said by Johann Vincent Galtung. शांति, लड़ाई झगड़ा नहीं है, इसका मतलब सिर्फ शांति नहीं है। शांति होने का मतलब है कि किसी भी तरह की, हर तरह से आदमी को इंसाफ मिले, न्याय मिले और वो सिक्योर फील करे। उसी वक्त हम कह सकते हैं कि शांति बरकरार है। सिर्फ वायलेंस नहीं है, इसका मतलब शांति नहीं है। शांति का मतलब जस्टिस भी है, यानी न्याय भी है, और ह्यूमन सिक्योरिटी भी है। आदमी ये फील करे कि उसको सिक्योरिटी भी मिले और वो उसके साथ न्याय भी हो, तब हम समझ सकते हैं कि पीस है, शांति है। द अदर डेफिनेशन इज़ गिवन बाय जेवियर पीरेज डे सुल्लार। पीस मस्ट बिगिन विथ ईच वन ऑफ अस, दो क्विट एंड सीरियस रिफ्लेक्शंस on its meaning, new and creative ways can be found to foster understanding, friendship, and cooperation among all people. That means peace is within us. अगर हम चाहेंगे कि हम अमन व सलामती पैदा कर सकते हैं, कायम कर सकते हैं, यानी शांति हम बरकरार रख सकते हैं, तो वो हमारे से ही शुरुआत होगी। यानी हमारे अंदर ही है शांति की शुरुआत करना, शांति बरकरार रखना। हम कहीं और से इसको ढूंढने से ये नहीं मिलेगी, कहीं और से ये शांति हमें नहीं मिलेगी। शांति का मतलब ये है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी समझ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आपस में दोस्ती हो, यानी फ्रेंडशिप हो, एंड कोऑपरेशन, और एक दूसरे का सहयोग हो, तो हम कह सकते हैं कि पीस बरकरार है और अमन व शांति है। सो पीस शुड बिगिन फ्रॉम अस एंड पीस इज़ विद इन अस, एंड in order to get peace we have to have understanding and friendship and cooperation among all people. This is said by Javier Pérez de Solar. Types of peace. These are the types of peace given by John Galtung. According to John Galtung, there are two kinds of peace. One is negative peace, another is positive peace. Negative, Cold War. Negative peace means Cold War. It means absence of wide ranging of physical violence or the condition of war. It means if there is a physical attack, physical violence, that means we can understand that if there is no physical violence or the condition of war, then we can think that there is a negative peace. And positive peace, hot war. It involves the development of a society in which there is no structural violence or social injustice. If there is no structural violence or social injustice, means there is a positive peace. यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि नेगेटिव पीस यानी नकारात्मक शांति। नकारात्मक शांति किस तरह से होती है? नकारात्मक शांति का मतलब जहाँ पर फिज़िकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ नेगेटिव पीस है। और द कंडीशन ऑफ वार, यानी युद्ध की कंडीशन वहाँ पर है, तो हम समझ सकते हैं कि देयर इज़ ए नेगेटिव पीस। सिमिलरली, इसी तरह से पॉजिटिव पीस यानी सकारात्मक युद्ध, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी
इन विच देर इज़ नो स्ट्रक्चरल वायलेंस, जहाँ पर स्ट्रक्चरल वायलेंस नहीं है, और सोशल इनजस्टिस है, यानी समाज में सामाजिक अन्याय है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि सकारात्मक शांति है। व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू मारिया मॉन्टेसोरी, she has given a definition about education of peace. Education is the best weapon for peace. That means only education is a weapon through which we can get peace and we can bring peace. This is the best weapon, education. यानी शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए हम पीस कायम कर सकते हैं, अमन और शांति हम ला सकते हैं। तो सिर्फ़ शिक्षा के ज़रिए ही हम ला सकते हैं, इस तरह से मारिया मॉन्टेसोरी कहते हैं। तो अनदर टर्म, द टर्म एजुकेशन इन दिस कंटेक्स्ट, यानी पीस एजुकेशन के कंटेक्स्ट में शिक्षा अगर हम समझना चाहें तो इसका मतलब ये है, द टर्म एजुकेशन इन दिस कंटेक्स्ट रेफर्स टू एनी प्रोसेस whether in schools or in informal or non-formal educational context that develops in children or adults the knowledge, skills, attitudes and values leading to behavior change. This is the education context, in the context of peace education. Education means we have to, it is a process, and this process is followed in schools either in informal way or non-formal way, or educational context that develops in children. That means we have to develop certain qualities among children like knowledge, skills, attitudes and values in order to bring change in their behavior, in their way of life. So that is the term meaning of education in the context of peace education. Peace education means it is a process. It is a process. This process can be followed either in the schools or in a informal way or non-formal way, or in educational context that develops in children or adults the knowledge, skills, attitudes and values in order to bring changes in the behavior of children or in the behavior of adult. ये जो शिक्षा का अर्थ है, ये पीस एजुकेशन के कंटेक्स्ट में यहाँ पर कहा गया है कि पीस एजुकेशन यानी शांति शिक्षा एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस स्कूलों में फ़ॉलो किया जाता है या फिर इनफॉर्मल वे में फ़ॉलो किया जाता है और फिर नॉन फॉर्मल वे में फ़ॉलो किया जाता है। इसमें इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नॉलेज, यानी ज्ञान बढ़ाना बच्चों का, और स्किल्स उनके अंदर डेवलप करना है। जो कुछ भी उनके अंदर जो स्किल मौजूद है उसको हम पॉलिश करना है, उसके ऊपर स्किल्स को डेवलप करना है, स्किल्स के ऊपर मास्टरी लाना है, और एटीट्यूड्स में और वैल्यूज़ में भी उनके चेंज लाना है। सो इसका मतलब, शिक्षा का मतलब पीस एजुकेशन के कंटेक्स्ट में ये है। तो अब हम दूसरा मीनिंग, जो एजुकेशन शिक्षा का जो ओरिजिनल मीनिंग है, जो वर्ड मीनिंग है यानी लफ्ज़ी माना है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। द वर्ड एजुकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेर। दिस इज़ द वर्ड एजुकेशन विच हैज़ कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेर, that means to draw or lead out. Peace education draws out from people their instinct to live peacefully with others and emphasizes peaceful values upon which society should be based. So this is the word meaning of peace education. Education means it is a Latin word that means educare. It means to draw or lead out. Peace education draws out from people their instinct to live peacefully
with others and emphasizes peaceful values upon which society should be based. Educators from early childhood to adult can use their professional skills to tell their students about peace. So, educators also can use this education from early childhood, and that means from beginning to the age of adult they can develop professional skills among students in order to get peace or to bring peace among children. The study of peace attempts to nourish those energies and impulses that make possible a meaningful and life enhancing existence. What are the definitions of peace education? अब तक हमने शिक्षा के और पीस एजुकेशन के डेफिनेशंस पढ़े और उसका अर्थ भी हमने समझा. अब हम डेफिनेशंस पीस एजुकेशन के डेफिनेशंस समझने की कोशिश करेंगे. Till now we have studied about the meanings and definitions of peace and education separately, but in this we will try to understand the definitions of peace education. Peace education point out both the value and risk of conflict and social change. This is the definition given by Mary Lee Morrison. Peace education means we have to point out both the value and risk of conflict and social change. The another definition given by Johann Vincent Galtung. Peace education is the pedagogical efforts to create a world at peace. By peace we mean more than the absence of violence, negative, positive. As we have discussed in the earlier slides also, the types of negative peace and positive peace given by Johann Vincent Galtung. According to him, peace means absence of violence in all the ways. That means, and also a process of education or pedagogical efforts how to teach the students to get peace. For example, knowledge, skills, attitudes and values. These things we have to develop among children. These are considered as pedagogical efforts to create a world at peace. By peace we mean more than the absence of war. यानी पीस का मतलब, शांति का मतलब ये है कि वहाँ पर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, ना ही सकारात्मक हो ना ही नकारात्मक हो. तो इस तरह से जोहान विंसेंट गैल्टंग ने पीस का डेफिनेशन यानी परिभाषा बताई है. तो अमन, अगर हम उर्दू ज़बान में कहेंगे तो इसको अमन की तालीम कहते हैं. पीस एजुकेशन को, पीस एजुकेशन का मतलब ये है कि रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी जहाँ पर किसी भी तरह से किसी भी तरह का संघर्ष यानी लड़ाई झगड़ा ना हो, सोशल चेंज वहाँ पर हो और पढ़ाने के तरीक़ों में तब्दीली हो. पढ़ाने की एक कोशिश है कि इस तरह से किस तरह से हम पीस एजुकेशन यानी अमन की तालीम हम बच्चों को दे सकते हैं. जहाँ पर किसी भी तरह का झगड़ा नहीं है तो उसका मतलब वहाँ पर पीस है. पीस का मतलब यही है, अमन व सलामती, शिक्षा की तालीम, अमन की तालीम. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीस एजुकेशन. शांति शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मैंने कुछ अहम उद्देश्य यानी इम्पॉर्टेंट उद्देश्य आपके लिए यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. टू डेवलप सेंस ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज इन एवरी इंडिविजुअल मीन्स वी हैव टू डेवलप वेरियस वैल्यूज अमंग इंडिविजुअल एंड टू नो द नेचर ऑफ वायलेंस एंड इट्स रूट. यानी जहाँ से झगड़ा शुरू हो रहा है, झगड़ा शुरू होने की वजह क्या है, उसके रूट्स यानी उसकी जड़ें क्या क्या हैं, उसको जानना है. ये एक अहम उद्देश्य है. और इसी तरह से जैसा कि पहले उद्देश्य हमने पता किया कि वैल्यूज़ डेवलप करना है इंडिविजुअल्स में. टू ऑब्जर्व द काजेस ऑफ वायलेंस एट माइक्रो लेवल. वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज़ द main cause of violence at micro level means ground realities we have to understand, and we have to understand with a micro level.
यानी हम जहाँ से झगड़ा शुरू हो रहा है उसके कारण जानना चाहिए और उनको पहचानना चाहिए, उनके ऊपर ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि किस वजह से झगड़ा हो रहा है। To prepare citizens to cope with difficult and uncertain situations and fitting them for personal autonomy and responsibility. It means we have to prepare citizens for understanding the difficulties and the uncertain situations of life, and various responsibilities also we have to understand and to fulfill the responsibilities. यानी नागरिक को हम जब कभी भी जहाँ कहीं भी मुश्किल पेश आती है तो उस मुश्किल को और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है और उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं उनको उनके लिए तैयार करना है। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स कॉजिंग वायलेंस एंड डेवलपिंग स्किल्स अमंग देम टू ओवरकम दोस। यानी स्टूडेंट्स की मदद करना है कि मतलब वो किस वजह से वायलेंस हो रहा है और उन वायलेंस को का ख़ास सामना करने के लिए उनके अंदर क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, वो सारी स्किल्स हम डेवलप करना है। टू स्ट्रेंथन पीस, यानी पीस को मजबूत बनाना है, फ्रेंडशिप और दोस्ती का एटीट्यूड, दोस्ती का माहौल पैदा करना है, एंड सॉलिडेरिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड पीपल। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीस एजुकेशन, ये भी दूसरा स्लाइड है कंटिन्यूएशन वाला। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ नॉन वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन अमंग द इंडिविजुअल्स। इट मीन्स वी हैव टू डेवलप abilities among students to not to have any kind of violence, and also to find out the causes of conflict and resolve the conflicts. So these three skills we have to develop among the students. Number one, non-violence, conflict and resolution. How to resolve the problem, how to resolve the conflict. So इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों के अंदर या किसी भी नागरिक के दरमियान में हम नॉन वायलेंस यानी लड़ाई झगड़ा ना हो और उसके कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष भी ना हो, और अगर हो भी जाता है तो उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है यानी उसका हल कैसे निकालना है, ये सब बच्चों के अंदर क्वालिटीज़ स्किल्स डेवलप करना है। टू टीच द सिटीजन्स टू रेस्पेक्ट द कल्चरल हेरिटेज, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड सोशल हार्मनी। सो वी आल्सो हैव टू टीच students to respect the cultural heritage. Most of the times what happens, only certain people or only a group of people will respect the culture of the particular region or particular place, but other group will not respect. So in this case, as a teacher, we have to develop the cultural heritage, respect to how to respect the cultural heritage and protect the environment. And we also have to develop quality among students, among citizens to protect the environment and create harmony in the society. Social harmony also we have to develop. इसका मतलब यह है कि हम नागरिकों को कल्चरल यानी संस्कृति के बारे में रेस्पेक्ट करने और उनको जो एनवायरनमेंट है, परिवर्तन है, तो उसको किस तरह से चेंज लाना है, उसमें उसको कैसे हिफाजत करना है उसकी, और समाज में किस तरह से खुशहाली पैदा करना है, ये भी हम शहरियों को या बच्चों को पढ़ाना इसका एक मकसद है। टू एक्सप्लोर पीस फॉर द प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशंस मीन्स वी हैव टू एक्सप्लोर पीस for promoting positive human relationship. Instead of negative human relationships, we have to develop and promote for positive human relationships. यानी नकारात्मक रिलेशंस के बजाय सकारात्मक रिलेशंस हम पैदा करना चाहिए, जिसकी ताकि उसकी वजह से शांति पैदा हो। टू क्रिएट कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर फॉर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स सो एज टू मिनिमाइज एंड एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका मतलब यह है कि हम कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर यानी बिहेवियर ऐसा बच्चों के अंदर पैदा करना चाहिए कि वो किसी भी
ये प्रॉब्लम को फेस करे और उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करे और बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस तरह से वो तैयार हो जाएं। To develop values and skills to assist the students in striving for the fullness of life. We have to develop certain values and skills so that students will be able to solve their problems, and also they will become all round development of their personality, so that they will make their personality fully and they can live the life happily. इसका मतलब यह है कि बच्चों के अंदर ऐसी स्किल्स और ऐसे वैल्यूज़ हम पैदा करने के लिए मदद करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो ज़िंदगी में खुशहाली से ज़िंदगी गुजार सकें और वो अपनी ज़िंदगी में नशोनुमा हासिल कर सकें। सोर्स ऑफ पीस। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ पीस? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ sources through which we will get peace: social peace, natural peace, and inner peace. Social peace means we will get peace from the society, and natural peace means we will get from the nature, peace we will get from the nature, and inner peace. So peace is, as one of the definition which we have understood, peace is within us. That means we will from within, from us, the peace will get, inner peace. So these are 3 types of peace: social peace, natural peace, and inner peace. अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे तो ये पीस यानी शांति हमें कहाँ से मिलती है और इसके ज़राए क्या हैं, यानी ये कहाँ से हमें मिलती है। ये 3 तरीक़े से हमें शांति मिलती है, 3 ज़रिए से हमें मिलती है। एक सोशल यानी सोसाइटी से, समाज से हम पीस हासिल कर सकते हैं। अगर समाज में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं है तो दैट मीन्स हम ऑटोमेटिक शांतिपूर्वक समाज में या एनवायरनमेंट में हम रह सकते हैं। नेचुरल पीस यानी नेचर भी अगर अच्छा है तो भी हम पीसफुल, जैसे सुबह सवेरे का नेचर बहुत अच्छा होता है तो वहाँ पर लोग जाते हैं, किसी पार्क में बैठते हैं पीसफुल एनवायरनमेंट में, योगा मेडिटेशन वगैरह करके समझ सकते हैं कि वो मतलब एक पीसफुल नेचुरल पीस वो हासिल करते हैं। इनर पीस का मतलब है कि हमारे अंदर से ही जो पीस आती है, यानी जो शांति आती है, जो खुद से आती है, अंदर से ही आती है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज इनर पीस। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ 3 sources of peace. One is social peace, natural peace, and inner peace. So this kind of question may be asked in any examination like UPSC, UPSC and CTET. So this is very important. Now what are the sources of peace? There are 3 sources of peace. One is social, natural, and inner peace. क्वालिटी ऑफ पीस एजुकेशन, यानी शांति शिक्षा में क्वालिटी किस तरह से लाई जाती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। डिसमेंटलिंग द कल्चर ऑफ वार। डिसमेंटलिंग द कल्चर ऑफ वार मीन्स जो वार का कल्चर है उसको कभी भी प्रमोट ना करते हुए उसको कभी भी इनक्रेज नहीं करना, ना इनक्रेज करना है, ना प्रमोट करना है, और ना ही उसको वेलकम करना है, यानी उसको ख़त्म करना, एक तरह से उसको ख़त्म करना। डिसमेंटलिंग मीन्स निराकरण, युद्ध की संस्कृति को निराकरण करना, यह है। इस तरह से अगर हम करेंगे, वार के कल्चर को हम ख़त्म करेंगे तो हम पीस एजुकेशन में, शिक्षा शांति में क्वालिटी ला सकते हैं। वी कैन ब्रिंग क्वालिटी इफ़ वी आर स्टॉपिंग the culture of war and not at all promoting the culture of war and ending or stopping the culture of war. So this is mean by dismantling of culture of war. Cultivating inner peace. This is important, second important point. So through which we can bring quality in peace education. Cultivating inner peace, we have to try to get inner peace from us, within us. So then we can bring quality in quality of
पीस एजुकेशन। सो शिक्षा, शांति शिक्षा में क्वालिटी लाने के लिए दूसरी जो अहम चीज़ है वो हम अपने अंदर से ही पैदा करना है, यानी कल्टीवेट करना, पैदा करना, अपने अंदर से ही लाना है शांति, तभी शांति आ सकती है। शांति हमें कोई ला कर नहीं देते, या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा घर का माहौल बहुत अच्छा है तो हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर शांति है। तो हमारा दिल पाक है तो समझ सकते हैं कि हमारे अंदर पीस है। तो लिविंग विथ जस्टिस एंड कंपैशन, यानी न्याय के साथ जीना, न्याय के साथ जीवन करना, ज़िंदगी गुजारना ही पीस है। तभी हम क्वालिटी ला सकते हैं पीस में, शिक्षा शांति में क्वालिटी ला सकते हैं। एंड कंपैशन, कंपैशन यानी दया, दया का जज्बा रखना, हर किसी के साथ हम मेहरबानी से, हमदर्दी से पेश आना है। तो हम और हमारे जो जीवन में भी न्याय लाना है और दया लाना है, तभी हम जाकर क्वालिटी ला सकते हैं। क्वालिटी पीस एजुकेशन हम कह सकते हैं। सो बिल्डिंग कल्चरल रेस्पेक्ट, यानी कल्चरल रेस्पेक्ट, रिकन्सिलिएशन एंड सॉलिडेरिटी। सो कल्चरल रेस्पेक्ट यानी कल्चर की भी रेस्पेक्ट हम करना है, और ये रिकन्सिलिएशन, ये जो टर्म है अक्सर आपको फैमिली कोर्ट्स में या कोर्ट वगैरह में देखने को मिलता है। रिकन्सिलिएशन यानी सुलह का मामला करना, एक दूसरे में जब लड़ाई हो गई किसी के अंदर तो हम उसको बुलाएं, बिठाएं, समझाएं और दोनों पार्टीज़ में सुलह करें। तो हम इस तरह से हम ये बिल्ड करेंगे रिकन्सिलिएशन। हम इफ़ वी आर डेवलपिंग द quality of reconciliation, cultural respect and solidarity, so then we can build quality of peace education. Then promoting human right and responsibilities, जो भी ह्यूमन राइट्स हैं यानी मानव अधिकार हैं उनको प्रमोट करना और उनकी ज़िम्मेदारियों को समझना, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम खुद एक मानव हैं तो हमारे क्या क्या अधिकार हैं। जब पहले मैं अपने अधिकार को समझूंगा तो जाहिर सी बात है दूसरों के अधिकार का भी मैं रेस्पेक्ट करूंगा और उनकी ज़िम्मेदारी को भी मैं समझूंगा। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, ह्यूमन राइट्स की नॉलेज नहीं है, व्हाट आर आवर फंडामेंटल राइट्स, सो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अगर हम कानून को हम नहीं समझेंगे, हमारे जो अधिकार है उसको हम नहीं समझेंगे तो मतलब क्वालिटी उसमें नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रमोट करना, समझना, ह्यूमन राइट्स को समझना और उसको प्रमोट करना, इस तरह से हम शिक्षा शांति में क्वालिटी ला सकते हैं। लिविंग इन हार्मोनी विद द अर्थ, यानी धरती में बहुत ही अमन व शांति के साथ रहना, यानी शांति धरती पर कायम करना। लिविंग इस तरह से मतलब किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और कहीं लड़ाई झगड़ा भी होता है तो हम उसको स्टॉप करने की यानी ख़त्म करने की कोशिश करना। दोनों पार्टीज़ में जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उनमें रिकन्सिलिएशन करना और उनको समझाना। तो इस तरह से हम कोशिश करने से शिक्षा शांति में क्वालिटी ला सकती है। सबसे पहले तो वार को ख़त्म करना, वार के कल्चर को डेवलप नहीं करना, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। डिसमेंटलिंग द कल्चर ऑफ वार एंड देन कल्टिवेटिंग इनर पीस, इनर पीस को कल्टिवेट करना। सो लिविंग विथ जस्टिस एंड कंपैशन, बिल्डिंग कल्चरल रेस्पेक्ट, रिकन्सिलिएशन एंड सॉलिडेरिटी, promoting human right and responsibilities, living in harmony with the earth. So if we are taking these measures, then definitely we can bring quality in peace education. What are the ways of conflicts? So we have to understand first of all the conflict, what is conflict and what are the ways of conflict. Conflict as an expression of hostility, negative attitudes, aggression, rivalry and misunderstanding. Means if we are expressing the misunderstanding, if we are not understanding properly anything or any issue,
then we will there are chances to get conflict. Similarly, negative attitude and hostility, aggression, rivalry, these are the sources of conflict. So, we have to avoid all these things. So, as a part of understanding conflict and ways of conflict, we have to understand these things. These are the negative words. We have to avoid all these negative words: hostility, negative attitudes, aggression, rivalry and misunderstanding. यानी कॉन्फ्लिक्ट मतलब है कि संघर्ष। संघर्ष कब शुरू होता है और कहाँ से शुरू होता है? जब हम किसी के साथ दुश्मनी है यानी शत्रुता है तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो संघर्ष वहाँ हो सकता है। नेगेटिव एटीट्यूड यानी किसी के साथ हम नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो भी हम समझ सकते हैं कि संघर्ष वहाँ होने के चांसेस हैं और वहाँ हो सकता है। नेगेटिव एटीट्यूड यानी नकारात्मक दृष्टिकोण, इसको हम प्रमोट नहीं करना है। अग्रेशन यानी किसी के साथ गुस्सा हम जाहिर करेंगे तो हम मतलब वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। रिवॉल्वरी यानी किसी के साथ अगर विरोध करना है, हम किसी को विरोध करेंगे तो भी वहाँ संघर्ष हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी किसी चीज़ को या किसी आदमी को या किसी के साथ हम मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे तो भी वहाँ कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष हो सकता है। यानी संघर्ष को एक्सप्रेस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस करने के ये ज़राए हैं। Conflicts as an expression of hostility, we should not have any kind of enemy with anyone. If we are expressing the hostility, that means the conflict will start. Negative attitude, if we are positive attitude, we will get peace. If we have negative attitude, we will get conflict. There are chances of getting war and chances of getting hostility and aggression, rivalry and understanding. So, a conflict is serious disagreement or argument or between two or more persons. Conflict means it is a serious disagreement. If you are not agreeing with someone's opinion or idea or theory, so then serious disagreement will start. If you and argument, if you are arguing on a particular thing between one person or with more than two persons, then conflict will start. So this is a serious disagreement. अगर किसी के साथ आप बहसबाजी करते हैं किसी एक आदमी से या दोनों आदमी से, दो से ज़्यादा लोगों से अगर आप बहसबाजी करते हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। कॉन्फ्लिक्ट सीरियस कॉन्फ्लिक्ट वहाँ हो सकता है यानी संघर्ष हो सकता है। Conflicts arises when basic physical and psychological needs are not met. यानी जब जो बुनियादी मानसिक और शारीरिक ज़रूरियात आदमी की नहीं पूरी होती हैं तो वो वहाँ संघर्ष पैदा हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। ये तीन तरीके हैं जिसकी वजह से संघर्ष होने के चांसेस हैं। तो हम कोशिश करें कि किसी तरह का संघर्ष ना हो। यहाँ बात पॉइंट ये है कि वेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हाउ वी विल गेट कॉन्फ्लिक्ट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। Sources of conflict. In this slide we will try to discuss some of the important sources of conflict. Number one, organizational change. If there is a change in the organization or in the system of organization, particularly an institute or either in private sector or public sector, if there is any sudden change, many employees of the institute or universities may not accept the sudden changes. So there are chances to begin conflict in this situation. Now the next point is different sets of values. Different sets of values, everyone is having his own values and moral values, especially if there is any conflict in the values, especially in the field of peace education. So if there are values, different types of values, then also the
chances are there to start the conflict. Personal clashes, if there is a personal clash between the persons, so between one person or two persons, so then also chances of conflict. Threats of status, if there is any threat to any designation or any status with the position, either the status may be social status or family status or any status, economic status, so then there are chances of threats in the conflicts to the threats of status. Lack of trust, if the trust is broken, if the trust is most important in the field of peace education, if trust is broken, so then if there is no lack of trust, that means we can say that so there are chances to build conflict in this situation. Job related issues, issues also very important, job related issues, because wherever there are issues with regard to the job, for example, if all of a sudden due to silly mistakes or something, if the head of the institution is issuing show cause notice to the employee, or then the employee may not be happy with the head of the institution, so in these cases the conflict will start. So here these are some of the important conflicts. तो कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष के ज़राए, संघर्ष कहाँ से शुरू होता है, इसमें हमने चर्चा की है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जब किसी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑल ऑफ ए सडन कोई चेंज आ जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के चांसेस हैं या कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर हो जाता है। डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज़, इसी तरह से वैल्यूज़ में अगर कहीं कमी होती है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है एक दूसरे के वैल्यूज़ में, किसी के अंदर पीस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, लव एंड अफेक्शन का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, और किसी के अंदर अग्रेशन का वैल्यू होता है, तो इसी तरह से किसी के अंदर नाराज़गी पैदा हो जाती है, तो यहाँ पर तो ये डिफरेंट सेट्स हो जाते, सेट्स का वैल्यूज़ का यहाँ हो जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। पर्सनल क्लैशेस, जब पर्सनल क्लैशेस यानी जब किसी आदमी के ऊपर कोई ज़्यादा हद से ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता है, यानी तो किसी तरह से एक दूसरे की नहीं बनती है, तो भी वहाँ पर पर्सनल क्लैशेस आ जाते हैं। थ्रेट्स ऑफ स्टेटस, किसी के स्टेटस को लेकर भी थ्रेट हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जैसे सामाजिक थ्रेट होता है, ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेट होता है, और इसी तरह से समाज में उसके रहने सहने को लेकर उसको थ्रेट लगा रहता है, यानी डर लगा रहता है कि भाई उसके स्टेटस गिरने का चांस है, या तो इस तरह से तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर शुरू हो जाता है। लैक ऑफ ट्रस्ट, भरोसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर चीज़ में और हर रिश्ते में। जब कहीं पर ट्रस्ट नहीं होता है एक दूसरे के अंदर, जब ट्रस्ट की कमी हो जाती है यानी विश्वास टूट जाता है, भरोसा ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। जॉब रिलेटेड इश्यूज़, इसी तरह से जॉब में कई सारे ऑल ऑफ ए सडन प्रेशर आ जाता है काम करने का, या एम्प्लॉइज़ के साथ कभी एडजस्टमेंट नहीं होता है। अगर कोई न्यू एम्प्लॉय है तो वहाँ पर एडजस्टमेंट होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। कभी सीनियर जूनियर के बीच में कोई इश्यू हो जाता है, कभी क्लैश हो जाता है, कभी ईगो हो जाता है, तो कभी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट या तो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन के बीच को लेकर कोई इश्यू हो जाता है। तो वहाँ पर इस तरह से जॉब रिलेटेड इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं। जब इश्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष शुरू हो जाता है। What is national conflict? A part of nation turn against another part of the same nation. Territorial conflict, composition of a government, national honor conflict, regional imperialism conflict, liberation conflicts, unifying a divided country. So these are the national conflict. So let us discuss one by one. A part of nation turn against another part of the same nation. For example, if India is
against of China or China is against of India, then the conflict will start between the nation. So territorial conflict, if there is a conflict between with regard to territories, then only we can say that territorial conflict, यानी क्षेत्रीय संघर्ष इसको जिसको हम कहते हैं, और नेशनल कॉन्फ्लिक्ट राष्ट्रीय संघर्ष composition of a government, यानी which means if any government is all of a sudden a government is taking place or formation of a government, जिसको हम हिंदी में कहेंगे संरचना और उर्दू में हम कह सकते हैं कि हुकूमत की तश्कील। जब कभी हुकूमत की तश्कील होती है यहाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट नेशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ ए गवर्नमेंट। नेशनल ऑनर कॉन्फ्लिक्ट, किसी देश के सम्मान में, किसी राष्ट्र के सम्मान में कोई भी चीज़ ऐसी कही जाती है कि मतलब उसको ठेस पहुंचती है या तो उसको बुरा लगता है, तो वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। रीजनल इम्पेरियलिज्म इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट in understand to conflict. So with regard to region also the conflict will start. लिब्रेशन कॉन्फ्लिक्ट, जब नेशन में आज़ादी को लेकर, किसी की आज़ादी को लेकर जब ये आज़ादी में डिस्टर्बेंस हो जाता है, आज़ादी नहीं मिलती है उसकी, तो वहाँ पर लिब्रेशन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, यानी संघर्ष, लिब्रेशन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। सिमिलरली यूनिफाइंग ए डिवाइड कंट्री, अगर कोई भी कंट्री जो डिवाइड हो गई है, फिर उसको अगर मिलाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। यूनिफाइंग ए डिवाइड कंट्री, इफ़ ए कंट्री इज़ ऑलरेडी सेपरेटेड एंड इफ़ वी आर ट्राइंग टू यूनाइट, कॉन्फ्लिक्ट विल स्टार्ट। यूनिफाइंग ए डिवाइड कंट्री, सो इट मीन्स इफ़ वी आर ट्राइंग टू unite any country which is already divided, then the conflict will start. अगर किसी मुल्क को जो ऑलरेडी तकसीम हो चुका है उसको मिलाने की हम कोशिश करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यूनिफाइंग ए डिवाइड कंट्री। ओके, व्हाट इज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट? इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस। Conflicts between different nations and conflicts between people and organization in different nation. So that means international conflict. International conflict means between a nation and between people and between organization in different nations. That is international conflict. Increasingly, however, it also applies to intergroup conflicts within one country when one group is fighting for independence or increased social, political or economic power. So if a nation is fighting between one country and between another country and groups of people fighting for the independence of the particular country, so then it is a international conflict. So either with regard to social, political or economic power, whatever the power, fighting with the power in various ways like social, political or economic, so then it is a international conflict. अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष उसको हम कहते हैं जो एक मुल्क और दूसरे मुल्क, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान में हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी हो, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो हम उसको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। जब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट उसी वक्त शुरू होती है जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को सपोर्ट करने की कोशिश करता है और वो मुल्क फिर उसके अगेंस्ट में बात करता है, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जिसकी वजह से एक मुल्क का असर दूसरे मुल्क पर भी पड़ सकता है। ये किसी भी तरह की आज़ादी को लेकर, यानी उसकी आज़ादी को लेकर हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो या सोशल हो या पॉलिटिकल हो, सामाजिक हो या पॉलिटिकल हो, तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। नीड ऑफ पीस एजुकेशन,
यानी शांति शिक्षा की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ पीस एजुकेशन? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट राइट्स. So the urgent need is to create awareness about rights. Rights means human rights. Every human being is having his own rights. We have to understand. So for that we have to create awareness in the society. तो समाज में जो मानव अधिकार हैं उसको समझने के लिए हम अवेयरनेस यानी उसके लिए काफ़ी प्रोग्राम्स यानी बेदारी प्रोग्राम्स को अमल करने की ज़रूरत है. For teaching values means we have to teach values. These days young generation they do not know the values, and if they know the values they don't want to practice the moral values, religious values or democratic values or whatever the values. So आजकल के जनरेशन में वैल्यूज़ की कमी है जिसकी वजह से इसीलिए पीस एजुकेशन देने की ज़रूरत है. Political help also required. So that is why there is a need of peace education for support to peace. And we have to support for the peace. अमन और शांति को हम सपोर्ट करना चाहिए instead of violence. To make good citizens बनाना है तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है हम पीस एजुकेशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी. फॉर गुड रिलेशंस, अगर रिलेशनशिप अच्छी पॉजिटिव गुड रिलेशनशिप के लिए भी पीस एजुकेशन की ज़रूरत है. फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस. दैट इज़ वाई देर इज़ ए नीड ऑफ पीस एजुकेशन. फॉर नॉन वायलेंस, सो everywhere there is a violence, so we have to support for non-violence instead of supporting violence. There is also a domestic violence and so many types of violence in the society, and for respect of each other, we have to respect each other. Generally what is happening, most of the people they expect respect from others, but they don't give respect to others. That is why it is a need of peace education. अक्सर ऐसे होता है सोसाइटी में कि मतलब लोग सेल्फ रेस्पेक्ट तो करते हैं यानी लेकिन दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिसके दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो उसकी इज़्ज़त करें, लेकिन जब वो दूसरों को इज़्ज़त दें तभी उनको इज़्ज़त मिल सकती है. तो इसीलिए पीस एजुकेशन, अमन की तालीम या शिक्षा की शांति बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अर्जेंट नीड है. वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी के बाद हमने 9 पॉइंट्स आपके लिए मेंशन किए हैं. व्हाट इज़ पीस एजुकेशन? इट प्रमोट्स द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स that will help people either to prevent the occurrence of conflict, resolve conflict peacefully, or create social conditions conducive to peace. Core value of non-violence and social justice are central to peace education. So peace education, शांति की शिक्षा का मतलब क्या है और शांति की शिक्षा क्या है वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे. शांति की शिक्षा, इट प्रोमोट्स द नॉलेज, मीन्स ये ज्ञान को बढ़ाने की बात करता है, स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात करता है या डेवलप करने की बात करता है. स्किल्स यानी जो हुनर, हिंदी में हम कहेंगे तो कौशल. तो ये कौशल इम्प्रूव करने की कोशिश करता है. एंड एटीट्यूड्स यानी जो व्यवहार है उसमें सुधार लाने की बात करता है, या तो हमारा व्यवहार सोसाइटी के लोगों के साथ यानी समाज में रहने वालों के साथ कैसे होना चाहिए तो उसकी बात करता है. अगर इसमें कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको किस तरह से हमारे स्किल्स के ज़रिए, हमारे एटीट्यूड के ज़रिए और हमारी नॉलेज यानी ज्ञान बढ़ाकर हम उसको कैसे सॉल्व करना है, रिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट यानी उसका हल, जो संघर्ष का हल कैसे करना है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. कोर वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस एंड सोशल जस्टिस आर सेंट्रल टू पीस एजुकेशन. ये नॉन वायलेंस है, ये इसकी सबसे अहम, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय
और नॉन वायलेंस यानी शांति, यानी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं हो, जिसको हम कह सकते हैं कि हिंसा ना हो किसी तरह का, तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है पीस एजुकेशन यानी शांति शिक्षा के लिए। पेडागोजी ऑफ पीस एजुकेशन यानी शिक्षा शांति की शास्त्र, यानी शिक्षा के शास्त्र। शांति शिक्षा में शिक्षा के शास्त्र क्या हैं, यानी हाउ टू टीच पीस एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एट स्कूल लेवल। सो pedagogy of peace education, the foremost important pedagogy or the method is action research. We have to conduct action research. Action research is very important. In Hindi, if we are talking about Hindi, in Hindi कार्रवाई पर शोध, यानी कार्रवाई पर शोध करना, यानी उसके ऊपर रिसर्च करना कि हमने अगर टीचिंग किया है उस टीचिंग में शोध करना, यानी रिसर्च करना, तहकीक करना। नंबर 2 मेथड इज़ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी सहयोग। तो हर बच्चों के साथ मदद लेते हुए उनके अंदर सिखाना कि कोऑपरेशन कैसे करना है, एक दूसरे को मदद कैसे करना है, एक दूसरे का हेल्प कैसे करना है, सहयोग कैसे करना है, वो हम बच्चों को पढ़ाना है। योगा के बारे में भी हम सिखाना है, ताकि जिसकी वजह से बच्चों के अंदर सोचने की सलाहियत पैदा हो सकती है और उनके दिमाग में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उनके दिमाग की स्किल्स और दिमाग का पावर, उनके दिमागी सलाहियत भी उनकी बढ़ सकती है। और बच्चों को ये भी पढ़ाना है लव, यानी लव, प्यार और मोहब्बत की बातें बच्चों से करना है और उसका जज्बा बच्चों के अंदर डेवलप करना है। अगर प्यार और मोहब्बत के बजाय हम इसकी प्यार मोहब्बत की बात हम अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है बच्चों के अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा हो और वो एक दूसरे से नफ़रत करने लगें। तो इसीलिए बच्चे को एक दूसरे से प्यार करना, उनके साथियों से, एक दूसरे से और मुल्क से, वालिदैन से, अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, बड़ों से, उस्तादों से, हर इन सब से प्यार मोहब्बत का जज्बा रखने के लिए बच्चों को टीचिंग करना है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग, यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब भी कोई भी कहीं पर भी संघर्ष हो जाए तो वहाँ पर तो शिक्षा देना है कि मतलब उनके अंदर किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जाए, यानी रेजोल्यूशन कैसे उसको हल किया जाए, उसकी ट्रेनिंग देना है, उसकी तरबियत देना है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में हम कहेंगे कि संघर्ष समाधान प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की ट्रेनिंग देना है। यानी संघर्ष के समाधान की प्रशिक्षण देना है। तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन, the next important point is democratic education. We have to teach to the children for improving, for developing the democratic qualities, democratic values, democratic education. In Hindi it is called as लोकतांत्रिक शिक्षा। लोकतांत्रिक शिक्षा के बारे में भी बच्चों को शिक्षा देना है। अगर हम उर्दू में कहेंगे तो इसको जमहूरी तालीम कहते हैं। जमहूरियत के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, उसके वैल्यूज़, उसके क़दरें क्या क्या हैं, ये सब डेवलप करना है। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे, इन हिंदी वी कैन कॉल इट एज मानव शिक्षा अधिकार। मानव के अधिकार यानी मानव के अधिकारों के बारे में बच्चों को शिक्षा देना है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं। जब हम बच्चों को मानव के अधिकार के बारे में हम पढ़ाएंगे तो हो सकता है बच्चे मानव के जो अधिकार हैं वो समझकर दूसरों के अधिकारों का रेस्पेक्ट करें, उनके राइट्स को वायलेट ना करें। वर्ल्ड व्यू ट्रांसफॉर्मेशन, इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड एज विश्व दृश्य परिवर्तन, यानी दुनिया के जो नज़रिए में है उसमें चेंज लाने की बातें बच्चों से करना है। अगर कोई कहीं पर भी बुराई हो रही है तो उसको हम किस तरह से चेंज करने के नज़रिए से हम उसको देख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथडोलॉजीज़ फॉर
teaching peace education at school level. Number one is action research. We have to conduct action research in the schools, and also we have to develop cooperation quality among students. We have to teach them to be cooperative in the schools, in classrooms, with the teachers, with the elders, with the parents, and also we have to teach them about yoga. Yoga is very important. We have to tell him, we have to promote to yoga, to adopt in their to exercise, to practice in their daily life. Love, we have also to talk to them about love and affection, with the peers, with the parents, with the teachers, with the countrymen, with the neighbors. So like this, otherwise they may start hating with each other. Conflict resolution training, we also have to give training on conflict resolutions time to time, weekly once or monthly once or yearly thrice. So like this we can give them training to the at school level. And then democratic education, also we have to teach them about democratic values. And then human rights education, we have to teach them about their rights, child rights, adult rights, women rights. So like this we have to teach them about various human rights. And when world view transformation, we have to teach them about transformation of world view. Pedagogy of peace education. Skills, as we had discussed in the previous slide. Now in this slide we will discuss about the skills. Skills are very important for teaching peace education. These skills we have to teach to the students. Number one, critical thinking, cooperation, empathy, assertiveness, conflict resolution, political theory. Critical thinking. Critical thinking, it has much importance to impart peace among students. Students should be able to approach issues with an open and critical mind and be willing to change their opinions in the face of new evidence and rational argument. They should be able to recognize and challenge bias, indoctrination and propaganda. So इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल पैदा करें, यानी उनके अंदर ये हुनर आए कि वो हर चीज़ को सोच समझकर बातचीत करने के वो लायक बने और किसी तरह के उनके अंदर बयास ना हो, और अगर बयास हो भी जाता है तो मतलब किस तरह से हो जाता है तो उसको समझने की कोशिश करें। और इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल पैदा करना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पीस एजुकेशन की ज़रूरत है। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. Students should be able to appreciate the value of cooperating on shared tasks and be able to work cooperatively with other individuals and groups in order to achieve a common goal. हर आदमी का एक कॉमन गोल है कि मतलब हम एक दूसरे के साथ मतलब कोऑपरेट करते रहें, अमन पैदा करना है, तो ये एक कॉमन गोल है जिसके साथ हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते रहें, और ये स्किल बच्चों के अंदर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी, एम्पैथी यानी सहानुभूति, सहानुभूति बताना। एम्पैथी, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पैथी? एम्पैथी मीन्स स्टूडेंट शुड बी एबल टू इमेजिन सेंसिटिवली द व्यू पॉइंट्स and feelings of other people, particularly those belonging to groups, cultures and nations other than their own. Here this empathy is very important, so we have to develop this quality. इसका मतलब यह है कि हम बच्चों के अंदर एक एम्पैथी यानी दूसरे के दर्द को समझने का जज्बा बच्चे के अंदर पैदा करें, और ये हुनर पैदा करना पीस एजुकेशन की ही तालीम है। असर्टिवनेस, assertiveness, what do you mean by assertiveness? Assertiveness means students should be able to communicate clearly and assertively with others, that is not in an aggressive way which denies the rights of others, or in a non assertive manner which denies their own rights. इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को साफ और एक बहुत ही अच्छे अंदाज में बातचीत करने के काबिल बनाना है, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर गुस्सा और नाराज़गी का भी इजहार ना हो, यानी बग़ैर गुस्से के
प्यार मोहब्बत के साथ बात करना, अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो उसको एक्सेप्ट करना, अगर नहीं आती है तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रिजेक्ट करना। और ख़ास तौर पर उस वक्त जहाँ पर किसी का राइट्स वायलेट ना होता हो, तो हर आदमी को अपने राइट्स समझने के काबिल भी बनाना, ये एक स्किल है। असर्टिवनेस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल्स इन peace education. Now we'll discuss about conflict resolution. Conflict resolution, students should be able to analyze different conflicts in an objective and systematic way and be able to suggest a range of solutions to them. Where appropriate, they should be able to implement solutions themselves. So here we have to make students to resolve the conflict themselves instead of supporting anyone. So let them understand, let them face conflict and let them resolve conflicts. So this is also one of the important skill. इसका हिंदी में अर्थ यह है कि मतलब जब बच्चों को किसी तरह की परेशानी या कोई मुश्किल या डिफ़िकल्टी पेश आती है तो वो उसको रिज़ॉल्व करने के काबिल बने, बच्चे खुद उसको फेस करें और उसको रिज़ॉल्व करने के काबिल बने। बट एज ए टीचर वी हैव टू monitor, see and guide the students. And political theory or political literacy, it is also one of the important skill in peace education. Students should be developing the ability to influence decision making thoughtfully, both within their own lives and in their local community and also at national and international levels. यानी पॉलिटिकल कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जवान बच्चे और नौजवान बच्चे वो बहुत जोश में आ जाते हैं और किसी पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ वो नारे लगाते हुए धरना करने के लिए सड़क पर आ जाते हैं। तो इसलिए उनको ज़रूरी है कि पॉलिटिकल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल थियरी को समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो उसमें माहिर बन सकें। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द स्किल्स इन पीस एजुकेशन। सो नाउ another important thing is attitude. So how to develop attitude, what kind of attitude should be developed among the students, that we will discuss here. Self respect, we have to develop self respect attitude. Students should have a sense of their own worth and pride in their own particular social, cultural and family background. So हम बच्चों में, विद्यार्थियों में सेल्फ़ रेस्पेक्ट का जज्बा पैदा करना है ताकि वो अपने घर में, सोसाइटी में और माहौल में जहाँ पर भी वो रहते हैं एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने के, मतलब सबसे पहले तो वो अपनी रेस्पेक्ट करने के लायक बने, देन रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। जब बंदा जब अपनी वैल्यू जानता है, अपनी रेस्पेक्ट जानता है, तो वो जाहिर सी बात है वो दूसरों की भी रेस्पेक्ट करने के लायक बनेगा। तो इस तरह का एटीट्यूड बच्चों के अंदर हम पैदा करना है। एक सेल्फ़ रेस्पेक्ट करें और दूसरा रेस्पेक्ट फॉर अदर्स करें, यानी दूसरों की भी वो इज़्ज़त करें। सो वी हैव टू डेवलप दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स एंड इकोलॉजिकल कंसर्न, नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड आल्सो students should have a attitude to respect to the nature also. Now this world has become global, so with internet we can access everything. So with the nature we have to try to respect. So another one is, यानी बच्चों को प्रकृति से भी रेस्पेक्ट करने के लायक बनाएं। ओपन माइंडेडनेस, कोई भी बात हो तो खुलकर बोलें और खुलकर बोलने के लायक हम बच्चों को बनाएं। तो बच्चों को सोचने के लायक बनाएं कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है और किस तरह का वो एटीट्यूड रखे हैं, या वो नैरो माइंडेड हैं या ब्रॉड माइंडेड हैं, ओपन माइंडेड हैं। तो अगर नैरो माइंडेड हैं तो उनको ओपन माइंडेड का एटीट्यूड रखने के लिए एक टीचर कोशिश करना चाहिए। देन विज़न, एंड विज़न इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट शुड बी ओपन टू एंड वैल्यू वेरियस ड्रीम्स and vision of what a better and world might look like, not only in their own community but also in other communities and in the world as a whole. यानी एक अच्छा बड़ा विज़न रखना चाहिए कि कम्युनिटी उनके व्यू पॉइंट में क्या है और उसके लिए
बहुत ही ब्रॉड माइंडसेट यानी वसीउ नज़र उसके लिए बनाना और इस तरह का एटीट्यूड रखना बच्चे के लिए ज़रूरी है। कमिटमेंट टू जस्टिस यानी वी हैव टू मेक स्टूडेंट्स टू बी कमिटेड फॉर जस्टिस इंस्टेड ऑफ इनजस्टिस, वी हैव टू मेक देम टू बी कमिटेड फॉर जस्टिस। यानी न्याय का जज्बा, न्याय के लिए मरने और मिटने के लिए बच्चों को जज्बा पैदा करना चाहिए। इस तरह से बच्चों के अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। So this type of attitude we have to develop in order to promote peace education. And knowledge also very important. We have to give students certain knowledge about in the field of peace education. Number one is conflict. Students should study a variety of contemporary conflict situations from the personal to the global and attempts being made to resolve them. They should also know about ways of resolving conflicts non-violently in everyday life. So इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को हम कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसको समझने और पढ़ने का जज्बा बच्चों के अंदर पैदा करें। स्टूडेंट्स अगर कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो खुद समझदारी के साथ उन कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करने के लिए तैयार होंगे। अनदर वन इज़ पीस। पीस यानी जैसा कि हमारा टॉपिक ही पीस एजुकेशन है, और ये पीस की भी नॉलेज बच्चों को होना चाहिए कि बच्चे पीस होता क्या है, व्हाट इज़ पीस। पीस स्टूडेंट्स शुड स्टडी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीस बोथ एज ए स्टेट ऑफ बीइंग एंड एज एन एक्टिव प्रोसेस ऑन स्केल्स फ्रॉम द पर्सनल टू द ग्लोबल। दे शुड लुक एट एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स who are actively working for peace। यानी जिसके लिए लोग काम कर रहे हैं उनको बच्चे अच्छी तरह से यानी विद्यार्थी अच्छे तरीके से उसको समझें और उसको पढ़ें और उसके बारे में कंपैरिजन करें, ताकि उनको समझ में आए कि शांति होती क्या है और शांति किस तरह से है, कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, तो उसको समझने के लायक बने। तो इसीलिए बच्चों को पीस के बारे में नॉलेज होना, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वार, अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ वार। जंग के बारे में भी हम बच्चों को नॉलेज होना चाहिए कि जंग अगर हुई है तो किस तरह से हुई है, किस लिए हुई है, उसकी वजह क्या है और उसके रीज़न्स क्या हैं, उसके काजेस क्या हैं, वो लोग चाहते क्या हैं, किस किस दरमियान में जंग हुई है। जैसा कि फ़ारसी में एक मशहूर कहावत है, तंग आमद और जंग आमद। जब किसी को तंग करेंगे तो जाहिर सी बात है जंग आ सकती है, इसीलिए किसी को तंग ना करें, और अगर जंग हो जाए तो वहाँ पर किस तरह से उसको समझें, स्टडी करें। स्टूडेंट्स शुड एक्सप्लोर सम ऑफ द की इश्यूज एंड एथिकल डायलेमास टू डू विद कन्वेंशनल वॉर। दे शुड लुक एट द इफेक्ट्स ऑफ मिलिटरिज्म ऑन बोथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑन स्केल्स रेंजिंग फ्रॉम द लोकल टू द ग्लोबल। यानी शुरू से लेकर आखिर तक जहाँ पर भी मतलब जिस तरह से जंग शुरू हुई है वहाँ पर समझने की और उसको स्टडी करने की कोशिश करें। इसलिए जंग की नॉलेज भी रखना बच्चों को ज़रूरी है। न्यूक्लियर इश्यूज़, स्टूडेंट्स शुड लर्न अबाउट ए वाइड रेंज ऑफ न्यूक्लियर इश्यूज़ एंड बी अवेयर ऑफ द की व्यू पॉइंट्स ऑन डिफेंस एंड डिसआर्मामेंट। They should understand the effects of nuclear war and appreciate the efforts of individuals, groups and governments to work towards a nuclear free world। यानी न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड होने के लिए बच्चों को उसको समझने के लिए उसको समझना ज़रूरी है। न्यूक्लियर इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और इन सब चीज़ों का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। जस्टिस, अक्सर होता है कि मतलब इनजस्टिस हो जाता है, इसलिए होता है कि नॉलेज नहीं होती है। जब नॉलेज होती है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की हो, ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेंस हुआ है तो उसकी नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए जस्टिस, न्याय इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट्स शुड स्टडी ए रेंज ऑफ सिचुएशंस इलस्ट्रेटिंग इनजस्टिस ऑन स्केल्स फ्रॉम द पर्सनल टू द ग्लोबल। दे शुड लुक एट द वर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन्वॉल्व इन द स्ट्रगल फॉर जस्टिस टुडे। यानी आज बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है समाज में, तो इसलिए बच्चों को पीस एजुकेशन
कि स्टडी में नॉलेज का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जस्टिस ही, अगर कहीं किसी कुछ इनजस्टिस होता है तो हम समझते हैं कि वहाँ पर पॉजिटिव पीस है। नेगेटिव पीस, पॉजिटिव पीस आपने तो पढ़ा है, तो हम उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहेंगे। नाउ लेट अस वी विल कंटिन्यू विथ अदर टाइप ऑफ नॉलेज। पावर की भी बच्चों को नॉलेज होना चाहिए कि पावर क्या होती है और पावर क्या है। पावर यानी ताकत। स्टूडेंट शुड स्टडी इश्यूज टू डू विथ पावर इन द वर्ल्ड टुडे एंड वेज इन विच इट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स पीपल्स लाइफ चांसेस। They should explore ways in which people and groups have regained power over their own lives. So पावर की बहुत ज़रूरत है, यानी उसको समझना ज़रूरी है। अगर जब पावर है तो उसको किस तरह से यूज़ करना है और ताकि किसी के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। Another one is gender. Gender also very important and we have to have knowledge, understanding. Gender students should study issues to do with discrimination based on gender. They should understand the historical background to this and the ways in which sexism operates to the advantage of men and the disadvantages of women. So we have to understand about gender के बारे में भी हम अगर नॉलेज नहीं होती है तो डिस्क्रिमिनेशन शुरू होने लगता है। तो इसीलिए मेन के क्या राइट्स हैं और मेन के क्या राइट्स हैं, वुमेन के क्या राइट्स हैं, और इस तरह से हम इसको राइट्स को समझने की कोशिश करें और उसकी नॉलेज हम रखें। देन नेक्स्ट, रेस स्टूडेंट्स शुड स्टडी इश्यूज टू डू विथ discrimination based on race. They should understand the historical background to this and the ways in which racism operates to the advantages of white people and to the disadvantages of black. And based on the colors, so the discrimination will start. So it is very important to study the various issues about discrimination and treat everyone equally. रेस का मतलब यहाँ पर यह है कि कलर के बुनियाद पर भेदभाव करना। अगर कोई गोरा है या काला है तो उसके साथ जुल्म और ज़बरदस्ती होती है, तो इसीलिए गोरे और काले का फ़र्क ना करें। इसलिए हम यहाँ पर स्टडीज़ को इश्यू करने के काबिल बनाएं। इफ़ स्टूडेंट्स आर हैविंग नॉलेज अबाउट रेस, then definitely they will not discriminate in the society. Another important is एनवायरनमेंट की भी नॉलेज होना चाहिए। अक्सर यह होता है कि नौजवानों को मतलब पड़ोसी कौन है उसका भी पता नहीं होता। एनवायरनमेंट तो बहुत दूर की बात है, तो इसीलिए एनवायरनमेंट की नॉलेज होना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स शुड हैव ए कंसर्न फॉर द एनवायरमेंटल वेलफेयर ऑफ द इंटर वर्ल्ड्स पीपल एंड द नेचुरल सिस्टम्स ऑन विच दे डिपेंड। दे शुड बी एबल टू मेक नेशनल जजमेंट्स कंसर्निंग एनवायरमेंटल इश्यूज़ and participate effectively in environmental politics. तो environmental politics में भी बच्चे हिस्सा लें और उसमें जो भी competitions होते हैं उसकी भी बच्चे तैयारी करें, ताकि उनको समझ में आए कि environment होता क्या है और वर्ल्ड लेवल पर यानी आलमी सतह पर यानी अंतर्राष्ट्रीय सतह पर किस तरह से वो environment को समझा जा सकता है, तो उसमें participate करने की कोशिश करें। The another one is futures. Students should study a range of alternative futures, both probable and preferable. They should understand which scenario are most likely to lead to a more just and less violent world and what changes are necessary to bring this about. यानी इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में मतलब उनका फ्यूचर कैसे हो सकता है, किसी भी कंट्री का फ्यूचर कैसे हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का फ्यूचर भविष्य कैसे हो सकता है, तो उसकी भी वो बच्चे नॉलेज रखने की कोशिश करें। तभी हम पीस एजुकेशन में हम शांति को अच्छे से समझने के लायक बनेंगे। हाउ टू रिजॉल्व नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम कॉन्फ्लिक्ट्स को, संघर्ष को कैसे हम इसको हल कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। प्रॉपर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी
एजुकेशन बहुत ही फॉर्मल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए और इनफॉर्मल एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन और गलत एजुकेशन बच्चों को दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑल्सो इनफॉर्मल एजुकेशन विथ क्वालिटी. We have to give them quality education instead of giving inadequate education. Change in social structure. We have to give the if students are understanding the changes in the social structure, definitely they will be able to resolve national and international conflicts. जब समाज के जो समाज में जो स्ट्रक्चर है उसको बच्चे समझने के लायक बने और उसमें जो तब्दीली आ रही है टाइम टू टाइम, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, इकोनॉमिक में हो या तो सोसाइटी में हो या फिर अपने रिलीजन में हो, किसी भी तरह से हो, कहीं पर भी कोई भी चेंज आता है तो वहाँ पर हम बच्चे उसको समझने की और रिजॉल्व करने के काबिल बनते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल वेल्थ में भी अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तब भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, बच्चों को ये करवाया जा सकता है। इंटरनेशनल एजुकेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा हम बच्चों को देना चाहिए ताकि बच्चे सिर्फ लोकल में ही ना पढ़ें और नेशन यानी अपने कंट्री में ही ना पढ़ें बल्कि आउटसाइड कंट्री में भी जाकर पढ़ें, फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर पढ़ें, ताकि वो समझ सकें कि वहाँ का जो कल्चर है और यहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के और यहाँ के कल्चर में कितना डिफरेंस है। जब वो जान जाएंगे तो मतलब हर आदमी को, जो भी फॉरेनर्स यहाँ भी आता है, चाहे वो इंडिया में आता हो तो भी वो उसको समझ सकते हैं, एक दूसरे से वो सीख सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, अक्सर ये होता है कि बच्चों के दरमियान, बच्चों के अंदर ह्यूमन राइट्स यानी राइट्स, जो उनके राइट्स हैं, पर्सनल राइट्स हो या प्रोफेशनल राइट्स हो या जो भी उनके राइट्स हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें उनको भी नहीं समझते हैं तो फिर एनवायरनमेंट के राइट्स बच्चे क्या समझेंगे। इसीलिए एनवायरनमेंट के राइट्स और ह्यूमन राइट्स दोनों की जानकारी बच्चों को होना चाहिए, तभी वो रिज़ॉल्व कर सकते हैं। हेल्दी पॉलिटिक्स, अक्सर ये होता है कि किसी भी पार्टी को लेकर समाज में, सोसाइटी में झगड़े फसाद हो जाते हैं, तो उन झगड़े फसाद ना हो तो इसीलिए इस हेल्दी पॉलिटिक्स होना चाहिए। इंटरनेशनल मैरिज एंड इंटरेक्शंस, सिर्फ लोकल में ही शादी ना करें बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ही भी शादी करें और एक दूसरे से इंटरेक्शन रखें, तब एक दूसरे का आना जाना रहे और एक दूसरे के डेवलपमेंट की बातचीत होती रहे। लेजिस्लेटिव मेजर्स एंड सिविल कैंपेन भी होते रहना चाहिए और लेजिस्लेटिव मेजर्स भी होना चाहिए। लेजिस्लेशन में भी कुछ चेंजेस लाना चाहिए ताकि मतलब जहाँ पर भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है सोसाइटी में और किसी भी राइट्स की कमी है तो वहाँ पर लेजिस्लेटिव मेजर्स की वजह से हम उसमें सुधार ला सकते हैं। अगर इन सब बातों पर अमल किया जाए तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन, इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑन दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन मेजर्स, सो वी विल बी एबल टू रिजॉल्व conflicts at national and international level. Sample questions, we will discuss in this video about sample questions for term and examinations. Explain concept of peace education. Number 2 question, define peace education. Number 3, what do you understand by negative and positive peace? Number 4, describe various methodologies of peace education. Number 5, what are the skills, knowledge and attitudes required for peace education? 6th question, how to resolve conflicts at national and international levels? 7th, describe various objectives of peace education. And 8th question, discuss important goals of peace education. Summary, सारांश, जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसकी एक समरी या रिकैप्चुलेशन हम करते हैं इसमें। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ पीस एजुकेशन, हमने मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या है, यानी शांति शिक्षा का अर्थ क्या है और शांति शिक्षा की परिभाषाएं क्या क्या हैं वो भी हमने डिस्कस किया है।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीस एजुकेशन यानी शांति शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं उसको भी हमने डिस्कस किया है। नीड ऑफ पीस एजुकेशन यानी शांति शिक्षा की ज़रूरत क्या है वो भी हमने इसमें डिस्कस किया है। टाइप्स ऑफ पीस एजुकेशन यानी पीस एजुकेशन के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? शिक्षा शांति के नकारात्मक और सकारात्मक शांति के बारे में हमने पढ़ा है। क्वालिटी ऑफ पीस एजुकेशन अगर हम लाना है तो उसमें किस तरह की क्वालिटी होना चाहिए तभी पीस एजुकेशन वो हो सकता है। व्हाट आर द वेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी हमने संघर्ष के क्या क्या ज़राए हैं, क्या क्या तरीक़े हैं, किस किस तरह से संघर्ष हो सकता है वो भी हमने जानने की कोशिश की है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट होती है और उसको हम समझने की कोशिश किए हैं। सोर्सेस ऑफ पीस एजुकेशन यानी शिक्षा शांति के ज़राए वो कहाँ कहाँ से आ सकती है शांति हमारे लिए, तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। पेडागोजी ऑफ पीस एजुकेशन यानी हाउ टू टीच पीस एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एट स्कूल्स, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड हियर यानी बच्चों को किस तरह से शिक्षा शांति पढ़ाना है, उसके क्या क्या तरीके हैं, बच्चों के अंदर क्या हुनर होना चाहिए और किस तरह की नॉलेज होना चाहिए और किस तरह का एटीट्यूड बच्चों के अंदर होना चाहिए वो हमने पढ़ा है। हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, हमने कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरह से ख़त्म करना है और किस तरह से रिजॉल्व करना है उसके बारे में भी पढ़ा है। और लास्ट में हमने सैम्पल क्वेश्चंस फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन, उसके बारे में भी हमने कुछ सैम्पल्स क्वेश्चन आपको दिए हैं और ये क्वेश्चंस आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में with regard to peace आ सकते हैं। So these are the sample questions and this is the summary and recapitulation of the entire presentation. Thank you for watching, sharing and subscribing to my Edu Dreams. Please watch our next video on the topic Human Rights Education, मानव अधिकार शिक्षा, इंसानी हुकूक की तालीम। Stay tuned with my Edu Dreams and take care of your health. Goodbye.